Good morning, students. How are you? I think you are fine and doing your homework regularly. Okay. Today we start some more algebraic identities. Last time we discussed about three and one more four identity of square in algebra. Okay. I repeat one more time. First of all, we discuss about a plus b whole square. Student, I will tell you these are not एक formulas. कोई formula नहीं है that you cram every time. What is a square plus b square plus 2ab? आपको ऐसा cram करने की जरूरत नहीं है. By the way, you forget the formula, then you make the formula. This is a plus b whole square. You write 2 times a plus b and a plus b. You multiply both of a by a square, a by b, a b, b by a, a b, b a, a b जो भी लिखना चाहो, b by b, b square, then a square plus b square plus ab or ab like term, and then it is 2ab. These are the formula. Okay. Second, a minus b its whole square, a square plus b square minus 2ab. आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं. By the way, in exam or in your any test, you forget these formulas, then you make formula. I will tell every method of the formula. कोई formula ऐसा नहीं कि किसी ने हमें दिया है मैथमेटिशियन ने कि आपको ये ऐसा यूज करना है, आपको ऐसा करना है. आप खुद बनाइए अपने formulas. Third time we have a square minus b square, यानी a plus b multiply a minus b, और one more formula that is a plus b plus c its whole square. What is the formula? First square plus second third square plus 2 into में first into second, 2 into में second into third और 2 into में first into third. Okay, ये हमने चार स्क्वायर के फॉर्मूलाज थे. These are based on 8th class, but this formula new for your in 9th class. Okay, so today we start some more identities in algebra. What are these identity? Today we discuss about cubic identities. We discuss about cubic identities. आज हमारे पास क्यूब में आइडेंटिटी है बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव a plus b its whole cube. बाइनोमियल में है बच्चों सारी. बाइनोमियल में there are two term only. Okay, a plus b its whole cube. Then what is the formula? सिंपल है. अगर आपको नहीं आता तो a plus b, a plus b, a plus b you write 3 times. First of all you multiply these two, then you multiply by third term, then you get formula. Simple. और डायरेक्ट अगर याद रखना है तो what is mean square of first, क्यूब ऑफ क्यूब है तो क्यूब ऑफ फर्स्ट, क्यूब ऑफ सेकंड, देन स्क्वायर में आपने यहाँ 2 लिखते थे, क्यूब में 3 लिख दो. 3 इंटू फर्स्ट इंटू बी. बस बिल्कुल सिंपल है. बस थोड़ा सा इसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसके अंदर, और इसके ब्रैकेट में आप लिख देंगे मल्टीप्लाई में a प्लस बी, जो टर्म है वो एज इट इज मीन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. समटाइम स्टूडेंट ओपन दिस ब्रैकेट ऑल्सो, देन फॉर्मूला इज a cube plus b cube, you multiply 3ab into a, 3a square b, 3ab multiply b, 3ab square. ये भी बोल सकते हो आप और ये भी बोल सकते हो. both are accurate. Okay, second identity we have that is a minus b its whole cube. सिंपल है, सिर्फ आपको यही याद रखनी है, ये अपने आप याद हो जाएगी. और फिर मैं कह रहा हूं याद रखनी नहीं है, आप बना लीजिए अगर आपको ये ऐसे ध्यान में नहीं रहता है तो क्यूब में क्या होगा बच्चों? सिंपल ए कोई चेंज नहीं है, तो यहां जितने भी ए है इस फॉर्मूला के अंदर एग्जैक्टली आप ऐसा कैसा लिख दें कि कोई चेंज नहीं है. 3ab और ए बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दें. बी की बजाय आपने बी नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा. ओके, और आप यहाँ बी नेगेटिव लिखेंगे तो बी नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. और यहाँ बी नेगेटिव है तो ये भी, यानी सेम फॉर्मूला है. बच्चे सोचते हैं बार बार दो फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सिंपल याद रखिए ये दो आइडेंटिटीज. एक बार इन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट टू मोर आइडेंटिटीज. वी डिस्कस अबाउट टू मोर आइडेंटिटीज ऑफ क्यूब. क्यूब की दो आइडेंटिटीज और हैं वो डिस्कस करेंगे.
तो आपको सबको ये याद हो गया होगा। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार बार हमें भूलेंगे नहीं। ए क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्वेश्चन आर वेरी simple of these identities, a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Now we start question. Question like this, you have one term 2x plus 3y, इसका whole cube, what is the, इसको open करना है अब आपको, यानी इसको expand करना है। तो simple, we have a, we have b, first term a, second term b, between them positive sign. Then how to open the cube? The cube of first mean a cube. Cube of first 2 cube 8 or x cube mean cube of first number. After that cube of second number 3 cube 27 or y cube mean a cube plus b cube. बच्चा इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कई बार बच्चों। आगे भी है 3ab यानी कि प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और ब्रैकेट ऑन, और ये सेम एज इट इज 2x plus 3। नाउ यू ओपन द ब्रैकेट 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, आफ्टर दैट 3 2 6 6 3 18xy और 2x plus 3y। नाउ यू ओपन दिस ब्रैकेट ऑल्सो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, और आप यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस 36x square y। नाउ 18 3 54 xy square. This is the final answer of this question. Like this we attempt two identities. Okay, like some more numerical question also, arithmetic question also we have. Like someone ask you what is the value of 1 under 2 its whole cube, or someone you ask about 1998 its whole cube, what is the value विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। क्वेश्चन ऐसे आता है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब बच्चे ऐसे करेंगे, सर ये तो हम अभी बता देंगे, 1 under 2 को 1 under 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 1 under 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन। विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन ये नहीं करना आपको, यानी या फिर यूं आएगा यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड the value of 1 under 2 its whole cube. Then how to solve? What is the value? How to write 100 and 2? कैसे लिखेंगे आप इसको? 100 plus 2 लिख देंगे आप, and then use this formula 100 plus 2. Then what is this the value of? This is same system, a cube plus b cube, 2 cube कितना हो जाएगा 8, 3 into a into b ब्रैकेट ऑन और a प्लस बी। नाउ 100 क्यूब क्या होता है बच्चों? 2 टाइम्स 0 ना, तो क्यूब तो 6 टाइम लगा देंगे हम, प्लस 8 और प्लस 3 2 6 6 इंटू 100 600, और 100 प्लस 2 आप 100 प्लस 2 भी पढ़ा रहने दो, 102 भी लिख सकते हो। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 और प्लस यू मल्टीप्लाई 600 by 100, दिस इज 60,000, और 600 by 2, दिस इज 1200। ओके, नाउ यू ऐड, दिस इज द मैन रीजन ऑफ मेकिंग मिस्टेक। अब यहाँ करके बच्चे पूरा क्वेश्चन कर चुके हो आप, लेकिन फिर भी गलती होती है बच्चों, तो इस तरह आपको जोड़ना हुआ। इफ यू हैव टाइम इन योर एग्जाम देन यू राइट, इस तरह लिख लेंगे आप, उसके बाद 60,000 है या 8 है, जो भी लिखना चाहो 8 लिख लो, 60,000 लिखो आप, और फिर आपके पास 1200 है। क्योंकि ये सिंबल आपके डिजिट आगे पीछे हैं तो गलती हो जाती है, तो इसको थोड़ा, अगर आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लीजिए, बट थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, गलती सबसे ज्यादा यही होती है। पूरा क्वेश्चन ठीक है, उसके बाद भी गलत कर देते हैं। इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन 998 its whole cube, then you write this is 1000 minus 2 whole cube, or and you use this formula a minus b its whole cube. Okay, so this is our first two identity of cubic. I think you understand about the two identities, और ये नाम की दो है बच्चों, एक ये बिल्कुल सिंबल का फर्क है बस, ठीक है।
तो शायद ये समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिमाइंड करें और आप दोबारा से देख लें बच्चों, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट अदर टू आइडेंटिटीज, टू मोर आइडेंटिटीज दैट आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सेकंड वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों पिछली बार जो आइडेंटिटी थी वो ये थी बच्चों ए प्लस बी इट्स होल क्यूब। होल क्यूब, क्यूब एक ही बार था उसमें और ए और बी को ऐड कर रखा था। इसमें क्यूब 2 बार है। ये डिफरेंस आपको आना चाहिए करना, अदरवाइज क्वेश्चन पूछूंगा ये और आंसर बच्चे ये देंगे, इसका पूछूंगा तो इसका आंसर देंगे। तो इनमें डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए आपको। क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी और ए प्लस बी होल क्यूब ये अलग है बच्चों। इसका मतलब है ए प्लस बी राइट 3 टाइम, ए प्लस बी 3 बार लिखना है। फॉर्मूला नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आ जाएगा बच्चों। और ये ए प्लस बी होल क्यूब है। ओके, तो इसकी आइडेंटिटीज क्या होगी बच्चों, इसकी आइडेंटिटी होगी, देखो बड़ा सिंपल है। इफ हेयर प्लस साइन देन यू राइट ए प्लस बी, यहाँ आप ए प्लस बी लिख दें। बड़ा सिंपल सा याद रखना। इधर a माइनस बी है तो a माइनस बी लिख दें, बिल्कुल सिमिलर। एक ब्रैकेट और लगाएं, यहाँ भी एक ब्रैकेट और लगाएं। यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट टर्म है a, इसका स्क्वायर आएगा और स्क्वायर कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, a स्क्वायर, यानी कि ये भी पॉजिटिव आएगा। उसके बाद b है, b स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ भी क्या आएगा, b स्क्वायर। दोनों सिमिलर फॉर्मूला है, बस सिंपल सा। यहाँ देखिए क्या कोई नेगेटिव सिंबल आया अभी तक नहीं आया, तो आप यहाँ पर माइनस ए भी लिख दीजिए। क्या यहाँ पर एक नेगेटिव सिंबल आया है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर प्लस ए भी लिख दीजिए। सबसे अच्छा वे तरीका है इसका। इस दोनों फॉर्मूलों में खास बात है बच्चों, नेगेटिव का सिंबल एक ही बार आता है। देखिए पूरे क्वेश्चन फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव सिंबल यहाँ है, पूरे के अंदर नेगेटिव सिंबल यहाँ है। इसमें नेगेटिव शुरू में ही आ जाता है, तो आपको सारी टर्म पॉजिटिव लिखनी है, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। यहाँ नेगेटिव सिंबल शुरू में ही आया तो इनमें आना है। ए स्क्वायर में नहीं आ सकता, स्क्वायर है पॉजिटिव होता है। बी स्क्वायर में नहीं आ सकता, स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कौन बच गया, एक ही टर्म बची है बच्चों, ए बी। तो यहाँ ए बी माइनस आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। कई बच्चे इसको ड्राइव भी करना चाहते हैं, तो ड्राइव करने के दो वे हैं। फर्स्ट इज वेरी सिंपल, यू मल्टीप्लाई बोथ दीज टू टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट द आंसर। और ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि वेरीफाई करो कि ये इसके बराबर होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एक मेथड और भी है कि इसको इसके बराबर, यानी राइट से तो हम लेफ्ट ले आए, इनकी मल्टीप्लाई, लेफ्ट से अगर हमें राइट लेके आना तो कैसे लेके, एक और मेथड भी है, वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सो टुडे वी टेक 1 or 2 more क्वेश्चन ऑन दिस आइडेंटिटीज। ओके, देखिएगा हम 1-2 क्वेश्चन और ले रखे हैं, देखिएगा ध्यान से क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 8x³ प्लस 64 और या 27 लिख लो आप y³, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। और कहेगा इसको फैक्टराइज करो बच्चों। क्या कहेगा, फैक्टराइज 8x³ प्लस 27y³। ओके, तो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी दिस नंबर, ये नंबर किसका क्यूब है, whose cube is this number, then you write 8 किसका क्यूब है, 2 का, और x किसका क्यूब है, x का, देन यू राइट 2x³, 2x इट्स होल क्यूब। आफ्टर दैट 27 किसका क्यूब है बच्चों, 3 का, y³ किसका है, y का। तो ऐसे लिख लेंगे सबसे पहले, यानी पूरी पावर में 3 आना चाहिए 2 बार। तो ऐसा बन गया बच्चों, देखो a³ प्लस b³ a³ प्लस b³, सिंपल। व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस प्लस बीच में है तो फर्स्ट और सेकंड लिखो, और जो सिंबल यहाँ बीच में है वही आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट टर्म बिल्कुल सी, इन सेकंड ब्रैकेट यू राइट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का स्क्वायर लिख दो। और कई बच्चे स्क्वायर इस तरह लिखते हैं, अगर आप ऐसे लिखोगे इसका मतलब ये है बच्चों 2 इंटू, ये ओनली x का स्क्वायर समझा जाएगा, बट हमें लिखना क्या, इस पूरे का स्क्वायर लिखना है। तो आप ये ब्रैकेट जरूर लगाएं बच्चों। ओके, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड का स्क्वायर। ये दोनों कैसे आएंगे बच्चों, हमेशा पॉजिटिव। फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव करने की कभी जरूरत नहीं होती। इफ यू राइट सेकंड टर्म इज पॉजिटिव, व्हाई पॉजिटिव बोथ टर्म, बिकॉज दीज आर स्क्वायर। अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी हो
तब भी इसको क्या कर देंगे पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है। अब देखो कहीं नेगेटिव सिंबल आया अभी तक नहीं आया, तो एक बार नेगेटिव जरूर आएगा, और क्या होता है लास्ट में ए बी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 2x मल्टीप्लाई 3y। आफ्टर दैट 2x प्लस 3y एंड 2x का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2x, 2 स्क्वायर 4, x स्क्वायर x, 3 स्क्वायर 9, y स्क्वायर y स्क्वायर। After that 2 multiply 3 6 x into y x y. This is the answer. ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया कुछ, यानी इसके दो फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये। सिंपल लाइक इस तरह का अगर बाई दो या नेगेटिव का सिंबल आ जाए तो एक ये सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। नेगेटिव है देखो दिस और दिस नेगेटिव, तो शुरू में नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद सारी टर्म क्या आएगी बच्चों पॉजिटिव आएगी, शुरू की नेगेटिव, दैट्स ट्रू। ठीक है, इसमें एक रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपल रिवर्स क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा लाइक आई हैव ए क्वेश्चन इन योर बुक 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b और प्लस 108ab²। ये क्वेश्चन दे देगा बच्चों, ये बीसी पर डिपेंड है, और आपको कहेगा कि इसको वापस फैक्टराइज करके दिखाओ, यानी कि इस तरह लेके आओ, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे शायद पिछली आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल जो हमने ओपन की थी अभी भी थोड़ी देर पहले। जो कौन सी आइडेंटिटी थी बच्चों, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस आइडेंटिटी पर यही क्वेश्चन आएगा बेस्ड, या तो ये वेरीफाई करना ये इसके बराबर है कि नहीं, या फिर इस तरह का कोई भी आपको, जैसे अभी 20 ये क्वेश्चन दिया था 8x³ प्लस 27y³, इसको फैक्टराइज करो, या कोई और नंबर भी हो सकता है। ओके, तो ये कैसे होगा बच्चों, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक 64a³ हुज क्यूब दैट वन, किसका क्यूब है ये, 64 क्यूब है 4 का, a³ किसका क्यूब है, a का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस इज 4a³, सिंपल 4 into 4 into 4 64 और a³ into a³, simple। after that you write minus this number cube of 27 cube of 3 b³ cube of b, then you write this one। और इसके बाद आपको ये दो टर्म अभी देखने की जरूरत ही नहीं क्या है, आप सिर्फ इतना देखिए इसका रिजल्ट क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब, क्या रिजल्ट था इसका, रिजल्ट था अभी करवाया था आपको a³ और b³ नेगेटिव है तो नेगेटिव, और माइनस में 3ab और a माइनस बी, ये रिजल्ट था इसका। तो बिल्कुल ऐसा बनाएंगे हम इसको, देखो फर्स्ट टर्म सेम बन गई, सेकंड सेम बन गई। अब यहां पर अगर मैं यूं लिखूं -3 इंटू में ये फर्स्ट टर्म लिख दूं और ये सेकंड टर्म लिख दूं 3। और मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, अलजेब्रा के अंदर ये क्रॉस का निशान नहीं लगाते हम, तो क्या लगाते हैं बच्चों, डॉट का निशान लगा देते हैं। In arithmetic you write cross symbol for multiplication, in algebra you write dot for multiplication। तो क्या लिखा मैंने, 3 into this one a this one b और 4a और -3। क्या आपने ये टर्म देखी है बच्चों, बट ये और ये सेम है, अब आप चेक कर सकते हो क्या ये हमने लिखा है, ये इसको देख के लिखा है, बिल्कुल भी नहीं देखा हमने, बट ये और ये सेम मिलेगी, आप चेक कर सकते हो। हमने लिखा कैसे, पहले वो रिपीट कर देता हूँ, दिस वन सेम, इसको हमने देखे लिखा, इसको हमने देखे लिखा, बिल्कुल इसको हमने नहीं देखा। इसको दो टर्म लिखने के बाद हमने क्या किया, -3 अपनी तरफ से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, देन ब्रैकेट और फर्स्ट माइनस सेकंड, ये लिखा बच्चों। ओके, तो अब ये बताइएगा आप, अब चेक कीजिए ये सही है कि नहीं है, देखो ध्यान से, 3 4 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 और 36ab हो गया, ये रफली कर रहा हूं मैं, 36ab हो गया ये, और ये है 4a माइनस 3। यू मल्टीप्लाई 36 4 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 144, a 2 बार है तो a का स्क्वायर और b 1 बार है तो b। अब 36 को इससे करें तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 36 3 जा 108 और a 1 बार है, b मल्टीप्लाई b दैट इज b², ये आपका आ जाएगा। देखिए आप सेम है क्या वो टर्म, मीन ये चीज, ये नंबर दो टर्म और ये एग्जैक्टली सेम है बच्चों, बट हमने इसको देख के नहीं लिखा, याद रहे इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके,
तो अब क्या हो गया, देखो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया ये फॉर्मूला। इस सारे को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले इसको ओपन किया था हमने, देखो इसी फॉर्मूले को ओपन किया था तो क्या लिखा था याद करो, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या लिखा था, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, अभी अभी इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन किया था, माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी, अभी अभी किया था हमने ये, बिल्कुल किया था। देखो ये चीज और ये चीज सेम ही तो है। अगर इस नंबर को मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ तो क्या मैं इसको वापस ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी इस नंबर को मैंने वापस ऐसा लिख दिया, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया और 3 बार है तो आप इसको 3 टाइम लिख दीजिए। ये रिवर्स क्वेश्चन है बच्चों, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका ये रिवर्स क्वेश्चन है और इसके हमारे पास 4 और 5 पार्ट्स हैं बच्चों। कितने पार्ट्स हैं, 4 और 5 पार्ट्स हैं। तो ये आज आप कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो लगभग आपको आज एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो आप 6, 7, 8 और 9 और 10 तक के क्वेश्चन अप्लाई यानी कि करके आएंगे। और उसके बाद हम एक दिन का ये टॉपिक हो रहा है, एक दिन एक आइडेंटिटी है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, ओके। तो तब तक आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट की। इफ यू हैव एनी डाउट देन टॉक टू मी, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।